Good morning, student. Today we are going to do remaining question of exercise number 2, and day by views are increasing. Thank you for that. And please subscribe my channel. So more and more video I will provide you. Please and press the like button also. So now I will not wanted to waste your more time. We start our video. So again it is my request that you have to read 2-3 times question, and our question is 11-liter juice. Everyone like juice? Raise hand. Those who want to like juice, like me, I like juice. So 11-liter juice is filled in a cylinder. 11-liter juice filled in a cylinder means quantity is given. Again I draw cylinder, and in this cylinder जूस इज फिल्ड. मैंने इस सिलेंडर में जूस को फिल कर दिया है. इट मीन्स वॉल्यूम इज गिवन, यानी इसमें कितना जूस आ सकता है वो हमको दिया. इट मीन्स वॉल्यूम इज गिवन. ओके. एंड हाइट इज गिवन. when volume is given, height is given, so what we have to find? Diameter means we have to find radius. So we start our question. Once again I will explain you through my bottle कि you understand that कि this is cylinder और इसमें हमने जूस को भर दिया है. कितना जूस है इसमें? 11 लीटर जूस हमने इसमें फिल कर दिया है. ठीक है. मीन्स क्वांटिटी इज गिवन. इसका मतलब है कि आपको वॉल्यूम दे दिया गया है. वॉल्यूम दिया है, हाइट दी है, यानी आपको क्या निकालना है? रेडियस. वेरी इजी फॉर्मूला. सो वी स्टार्ट विथ गिवन. चलो गिवन में क्या दिया है? सबसे पहले वी हैव टू राइट, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज गिवन 11 liter, and here is given 1 liter is equal to 1000 centimeter. So in place of 1 liter we can write 1000 centimeter. अब आप सोच रहे होंगे कि why we have changed the unit. तो देखिए, because our height is given in centimeter, so we have to change. So our volume become 11,000 centimeter. Okay. And what is given? Height. Height is given. Height also you can write. What is our height? 35 centimeter. ठीक. So now we can write the volume of cylinder formula, pi r square h. Okay. Understand? Now what is 22 upon 7? What is our r? We don't know our r. And height, what is height given? Height is 35. ठीक है. Cube I have not written. So till now you have understand the question. Height is 35 centimeter. Volume of cylinder is 11 liter, and first we change 1 liter is equal to 1000 centimeter cube. ठीक. पाई का वैल्यू तो आपको रटा गया होगा 22/7, आर स्क्वायर 35. अब आप इसको कैंसिल कर दीजिए. ये देखिए. ओके. नाउ what is left? 5 and 22. चलिए काट दीजिए. 11 1 जा, 11 2 जा. ओके.
1 2 3 4 and 10 काट दीजिए. What is your 100? How can you solve? Very easy. 10 power. Both side if you will take root, so your radius is 10 centimeter. ठीक. We have to find diameter, but remember that we have to find the diameter. और मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि diameter जो रहता है वो रेडियस का क्या होता है, डबल होता है. यानी d बराबर what we can write 2r and what is our r 10, so we multiply, so our diameter is 20. So easily we have completed our first question. 11th question, a thin cylindrical tin. Okay, so I am making cylindrical tin this type. Okay, I have made cylindrical tin, contains 1 liter paint. अगेन कंटेन आ गया. देखिए कभी भी याद रखो कि कंटेन वर्ड आ गया, लीटर वर्ड आ गया, तो आपको याद रखना है कि व्हाट गिवन, वॉल्यूम इज गिवन. तो 1 लीटर और 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब. इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको ये चीज बता दिया. इसका मतलब 1000 सेंटीमीटर वॉल्यूम इज गिवन. ठीक है. एंड दिस टाइम व्हाट इज गिवन, रेडियस इज गिवन. डायमीटर इज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड द रेडियस. और आपको मालूम है रेडियस जो रहता है वो डायमीटर का हाफ होता है. सो वी विल राइट गिवन रेडियस of cylindrical tin, d upon 2. Our d, what is d, 14 centimeter divided by 2. So easily we have calculated our radius is 7 centimeter. And what is given, volume is given. Okay, volume of cylinder is 1000 centimeter cube, because we have changed 1 liter to centimeter. Now only we have to find the height. So we write here volume of cylindrical, what is pi r square h. Okay, 1000. We can write here 22 upon 7, and what is our 7 into 7, and height we have to find. So 7 we will cut. Okay, so 1000 then 22 into 7. When you will calculate this value, so you will find your answer. In this way we have also completed this question. Very easy this is. So we have completed our question. Question is looking big, but answer and its solution is very easy. Question is given that the patient in hospital, patient means मरीज है ना, because we are talking about the hospital and मरीज. तो कुछ आपको दिमाग में तो आ गया होगा कि भाई जब पेशेंट है तो समथिंग वी हैव टू गिव. तो हम उसको क्या दे रहे हैं, सूप दे रहे हैं. सूप, एवरीवन लाइक सूप, आई आल्सो लाइक सूप, and soup is good for our health. So everyone have to drink soup. डेली उनको सूप दिया जाता है. और बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द सिलेंडर, सो आप समझ गए होंगे कि जो सूप है वो सिलेंडर में दिया जा रहा है और उसका जो डायमीटर है वो कितना है, 7 सेंटीमीटर. तो हाफ क्वेश्चन फर्स्ट वी विल
ड्रॉ करके समझ लेते हैं कि भाई ये आपका क्या है, सूप देने का पात्र है, यानी इसी में ही सूप समझ लो दिया जाता है। ठीक है, तो इसका इसका जो डायमीटर है वो कितना दिया हुआ है, 7। हमेशा जब डायमीटर दिया रहता है तो वी हैव टू फाइंड द रेडियस, तो वो हमको तो बड़ा इजीली वी कैन फाइंड इट। चलो मूव अहेड विद द नेक्स्ट पोर्शन ऑफ द क्वेश्चन। इफ द बाउल इज फिल्ड विद द सूप एट द हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर, यानी उसने क्या करा है, सूप को 4 सेंटीमीटर के हाइट तक भरा है। ठीक, तो डायमीटर इज गिवन, हाइट इज गिवन, मतलब जब दो चीज अपने को, जो अपने को फॉर्मूला क्या है, मतलब भाई अपने को समझ आ रहा है कि भाई हमको ये निकालना है कि हाउ मच क्वांटिटी ऑफ सूप इज गिवन टू द पेशेंट, यानी कितना उसे क्वांटिटी दी है। तो ऑलवेज आई टेल यू कि व्हेन एवर द क्वांटिटी वी हैव टू फाइंड दैट मींस वॉल्यूम वी हैव टू फाइंड, एंड वॉल्यूम का फॉर्मूला तो आप सबको मालूम है, पाई आर स्क्वायर एच, यानी पाई की वैल्यू मालूम है, आर की वैल्यू हमको मालूम है, एच की वैल्यू मालूम है, तो इजिली वी कैन फाइंड कि हाउ मच क्वांटिटी ऑफ सूप इज गिवन टू द वन पेशेंट। ठीक, चलो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो गया। यहाँ हो गया, हॉस्पिटल बनाना पड़ेगा, लेकिन हमको कितने को देना है, 50 पेशेंट को देना है। तो हमने तो एक की क्वांटिटी निकाली कि हाउ मच सूप ही कंटेन इन वन सिलेंड्रिकल पॉट। सो जो आंसर आएगा देन वी हैव टू मल्टीप्लाई विद द 50 बिकॉज दैट वन सूप इज गिवन, अपने को अपन निकाले, देन वी हैव टू फाइंड द हाउ मच क्वांटिटी ऑफ सूप इज गिवन टू द 50। तो एक जो आंसर आएगा उसको अपन ओनली वी हैव टू मल्टीप्लाई विद। तो सो चलो हम निकालना शुरू करते हैं। तो गिवन गिवन व्हाट इज गिवन, देखिए आपको डायमीटर दिया है ना, cylindrical bowl, what is given 7। तो फर्स्ट वी विल फाइंड आउट रेडियस d अपॉन 2, 7/2। इसको आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑटोमेटिकली इट विल कट, और ज्यादा है तो आप इसको 3.5 सेंटीमीटर यूनिट जो है वो लिख सकते हैं। देन हाइट, व्हाट इज हाइट गिवन 4। हाँ, मैं देख रहा था कि भाई हाँ उसमें तो नहीं है यूनिट, तो हाइट आपको कितनी दी है बेटा, 4 सेंटीमीटर। नाउ वॉल्यूम निकाल लेते हैं अपन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बाउल। तो फॉर्मूला तो आपको अब बिल्कुल बार बार आपको लिखना है और याद रखना है कि भाई हमारा फॉर्मूला क्या है। चलो वैल्यू रख दीजिए 22/7। आर आपका क्या है 7/2, 7/2. Why I have written 2 times, because when you will put the value of r, so r का square है तो we have to write the 2 times, and height is 4। चलो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 7 से 7 गया, 2 1 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, 2 2 जा, तो what is left 22/7, यानी 154 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारी क्या निकल गई, यूनिट निकल गई, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यानी एक पेशेंट को हम इतना सूप देते हैं। लेकिन अपन जो सूप रहता है वो जनरली हम किस में यूज करते हैं, लीटर में, है ना भाई, लीटर में यूज करते हैं। तो ये समझ लो कि एक पेशेंट को हमने इतना दिया है, तो नाउ वी हैव टू गिव 50 पेशेंट। सो सूप गिवन टू 1 पेशेंट, तो एक पेशेंट को आपने कितना सूप दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिए हो। सो सूप गिवन टू 50 पेशेंट, ओनली वी हैव टू मल्टीप्लाई एंड वी विल गेट आवर आंसर। वेरी इजी आंसर था। किस आपको क्या दिया था कि यू आर इन हॉस्पिटल, है ना, या वी आर टॉकिंग अबाउट द हॉस्पिटल, एंड हॉस्पिटल में एवरीवन नो दैट कि पेशेंट इज गिवन टू द सूप, एंड सूप इज गिवन इन द सिलेंड्रिकल पॉट,
एंड सिलिंड्रिकल पॉट की हमको क्या क्या दे दी गई थी, डायमीटर दे दिया गया। तो सो फ्रॉम डायमीटर वी हैव फाइंड आउट रेडियस, हाइट इज गिवन, तो हाइट तो जैसी वैसी, हमने वॉल्यूम निकाल लिया। तो ये जो वॉल्यूम निकला है वो 1% को दिया जाता है ना। सेंटीमीटर को आप लीटर में चेंज कर लेना, क्योंकि हमको मालूम है कि 1 लीटर इज इक्वल टू सेंटीमीटर क्यूब। जो आंसर आएगा बस आपको उसमें 1 लीटर से मल्टीप्लाई कर दोगे, सो यू विल गेट योर आंसर। वन थिंग आई हैव नॉट टोल्ड टू यू, मैंने एक चीज आपको ये नहीं बताई थी कि इन माई चैनल आई एम नॉट ओनली टीच द मैथ्स बट आल्सो आई टीच फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो and social science and English, means I teach every subject. If you have doubt in any chapter, so please write in comments box and I will make the video of that chapter, and definitely surely before your exam will be start I will send you that video, and next day I will teach you some basic grammar that problems generally the student face in voice and narration, and I will make that video and I will send you. So next first we will complete this chapter. So this chapter also will complete. Before that we have to complete this question. So question is very easy, but you have to understand it कि what is it saying. 18 मीटर लॉन्ग थिन वायर, 18 मीटर यानी आपका एक ऐसा 18 मीटर का एक लंबा वायर है, ठीक है, ड्रॉन बाय मेल्टिंग ए कॉपर रॉड। इसका मतलब ये बोल रहा है कि ये जो वायर है उसको अपन क्या करे हैं कि एक रॉड से हमने उसे बनाया है। तो आप लोग जनरली देखे होंगे जो रॉड रहती है, जैसे समझ लो ये रॉड है, तो रॉड जो दिख रही है वो आपको सिलेंड्रिकल शेप की है। तो ये समझ लीजिए कि एक सिलेंडर से हमने क्या बनाया है, एक वायर बनाया है, ठीक है। और ये जो सिलेंडर है वो एक 1 मीटर डायमीटर का है और 8 मीटर उसकी क्या है, लेंथ है। तो यू अंडरस्टैंड दैट, आपको समझ आ गया है कि एक सिलेंडर से हमको क्या बनाना है, एक पतला वायर बनाना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि भाई इसको मेल्ट करके हमको इसको चेंज करना है, तो समझ जाना दोनों का जो वॉल्यूम है, तो भाई अगर अपन जैसे कोई 5 किलो की कोई चीज है अपने पास, उसको अगर अपन चेंज करेंगे, मेल्ट करके कुछ दूसरा रूप देंगे, है ना, तो भाई उसका वॉल्यूम तो नहीं बदलेगा ना। तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में आपको याद रखना है कि हमेशा वॉल्यूम चेंज नहीं होता। फिर से आप एक बार क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आपके पास एक रॉड है, रॉड जो है वो सिलेंड्रिकल शेप की है, उसको आपको मेल्ट करना है और मेल्ट करके आपको एक क्या बनाना है, थीन वायर बनाना है। और थीन वायर की आपको क्या बताना है कि लेंथ तो आपको दिया हुआ है, और कॉपर मतलब जो वायर है ना, कैलकुलेट द थिकनेस ऑफ वायर। थिकनेस का मतलब वो कितना मोटा है। तो चलो अपन क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ बना देते हैं आपका रॉड, मतलब जो सिलेंड्रिकल शेप की है, ये आपका समझ लो रॉड हो गया। रॉड को अपने को क्या करना है, मेल्ट करना है। मेल्ट यानी पिघला के हमको क्या करना है, ऐसा पतला सा वायर बनाना है। और इस वायर की हमको क्या निकालना है, थिकनेस, यानी हमको निकालना है आर। तो आर तो आधा होगा, यानी हमको क्या निकालना पड़ेगा, डी निकाल लेंगे तो हमको समझ आ जाएगा कि वायर कितना मोटा है, ठीक। और ये इसका जो दिया हुआ है, कॉपर रॉड का डायमीटर 1 मीटर दिया हुआ है। थोड़ा सा अच्छे से समझना क्वेश्चन, 1 मीटर दिया हुआ है बेटा। और इसकी जो लेंथ है ना, ये जो लेंथ है वो कितनी दी हुई है, लेंथ यानी हाइट। तो जो जो दिया उसको अपन लिख लेते हैं गिवन में, है ना। तो हाइट ऑफ रॉड कितना दिया है बेटा, हाइट ऑफ रॉड 8 मीटर। इसका आपको डायमीटर दिया है, तो अपन को तो रेडियस से मतलब है ना। तो रेडियस ऑफ रॉड क्या हो जाएगा, d/2। डी कितना दिया है, तो 1/2। दो चीज हमने निकाली। अब हमको क्या, मैं आपको बताया ना, इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, है ना। तो
वॉल्यूम ऑफ रॉड, उसका फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो अपन पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे क्योंकि उसका रीजन मैं आपको बाद में बता दूंगा। ठीक है, आर, व्हाट इज आर, आर आपको दिया हुआ है, देखिए, हाँ 1/2, और हाइट आपको कितनी दी है 8, आप कैंसिल कर दीजिए, तो आपका आ गया 4 पाई। वॉल्यूम ऑफ रॉड आपका कितना आ गया 4 पाई आ गया। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। उसी प्रकार मैंने आपको बताया था जब भी कोई चीज को अपने को मेल्ट करके दूसरा चीज बनाना है तो हमको दोनों का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। अब हम इस थिन वायर का वॉल्यूम को निकालेंगे। ठीक है, तो अपन सेकेंड पार्ट में आ जाते हैं। समझ लो ये फर्स्ट पार्ट था और अब हम वायर की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द वायर। तो इसमें आपको क्या दिया था, देखो लेंथ दी थी, मैं आपको पहले बताया था अपने को कितने लंबा खींचना है 18। तो अपन क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ वायर कितना दिया है बेटा 18 मीटर दिया है। ठीक है, और हमको, ठीक है, और हमको क्या पता है, इसका क्या पता है, लेकिन हमको इसका रेडियस तो पता नहीं है ना। तो चलो रेडियस की जगह अपन रहन देते हैं, रेडियस तो हमको पता नहीं है, तो चलो हम रेडियस की जगह के ले लेते हैं। अब अपन इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ वायर, उसका फॉर्मूला भी वही होगा, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई की वैल्यू को अपन पुट नहीं करेंगे, आर तो हमको पता नहीं है, लेकिन एच पता है, वो कितना है 18। ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 2। मैंने आपको इसके पहले ही बताया था, मैंने इसके पहले बताया था कि भाई व्हेन वी आर चेंजिंग रॉड इनटू वायर तो दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, इसलिए वॉल्यूम ऑफ रॉड एंड वॉल्यूम ऑफ वायर दोनों सेम होगा। सिंस वॉल्यूम ऑफ वायर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रॉड। ठीक, चलो अपन लिख लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ वायर अपना कितना आया, देखिए बेटा, पाई आर स्क्वायर 18 आया है, आया है ना। और इसमें अपना कितना आया है बताओ, 4 पाई आया है। तो मैं इसके पहले बोला था पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे क्योंकि पाई से पाई अपन क्या कर देंगे, इजिली कट कर देंगे। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 18 नीचे चल जाएगा, 2 2 जा और 2 9 जा। ठीक है, ये आ गया आपका 2/9। अब अपन इसमें अगर अपन लगाते हैं तो ये आसानी से कट जाएगा। तो ये आपको मालूम है कि इसका रूट किसको अगर अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 2√3। ओके, तो √2 और है ना, ये डबल हो गया, कट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। ये आ गया आपका। ठीक है, यहाँ तक आपका आ गया। चलो अब हमको क्या निकालना है, डायमीटर निकालना है। तो डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 2 इंटू रेडियस, और आपका रेडियस हमने क्या निकाला है √2/3। आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2√2/3, तो ये आ गया आपका डायमीटर। अगर आप 2 की वैल्यू को रखोगे तो यू कैन फाइंड योर आंसर। एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ कि क्वेश्चन बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। कि इस क्वेश्चन में ये दिया गया है कि आपको एक रॉड दिया है और रॉड से आपको क्या बनाना है, थीन वायर बनाना है। तो ऐसे क्वेश्चन में दोनों का वॉल्यूम बराबर होता है। तो इसमें देखिए 18 मीटर आपका क्या दिया था, हाइट दिया था, रेडियस आपका 1 दिया था, तो 1/2 हमने इसको निकाल लिया है 4 पाई। उसी प्रकार हमने यहाँ 18 रखा, आर स्क्वायर को नहीं रखेंगे। ठीक है, यहाँ अपने से बेटा थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, क्योंकि याद रखो, देखो आर स्क्वायर बोला था हमने, तो यहाँ एक ही बार लिखा है। तो यहाँ अपने को 1/2 यानी 2 2 जा 4। ठीक है, 2 2 जा 4 होगा, तो 4 से तो मतलब अपना ये पूरा ही कट जाएगा ना, तो यहाँ अपना 2 आ जाएगा, सॉरी
यहाँ आपका क्या आ जाएगा, 2 मेरे से मिस्टेक हो गई थी कि यहाँ अपने को 2 बार रखना पड़ेगा ना। ये देखिए मैं समझाता हूँ आपको एक बार फिर से लिख के, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं, अभी समय है। हाँ, तो यहाँ r के जगह अपने को 1/2 इंटू 1/2 लिखना था, और h आपका कितना दिया है 8, तो ये 2 है ना, तो 4 हो गया, तो यहाँ 2 पाई आएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ 2 पाई आ गया है, तो अपना यहाँ कहाँ मिस्टेक हुआ है, ये 2 है ना, ये भी 2, ये भी 2, तो 2 2 जा 9 है ना, तो ये 2 तो अब अपन ने काट दिए हैं। ठीक है, ओके, आई विल एक्सप्लेन यू, यहाँ से फिर से बता देता हूँ मैं, खैर कोई बात नहीं। हाँ देखिए, वॉल्यूम ऑफ आपका वायर था, वॉल्यूम ऑफ रॉड, तो वॉल्यूम ऑफ वायर अपन ने कितना निकाला था बेटा, पाई आर स्क्वायर 18 निकाला था। वॉल्यूम ऑफ रॉड हमने ठीक कर लिया था, कितना आया था, 2 पाई आया था। ठीक है, पाई से पाई क्या हो गया था, कैंसल हो गया था, ये आ गया 2/18 आ गया था, सॉरी बेटा उसके लिए, 2 1 जा और 2 9 जा, तो अपना आ गया 1/9। ठीक है, यहाँ तक आ गया। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 1 इंटू 1 लिख सकते हैं बेटा, 1/3, दोनों का पावर अब क्या आ गया, क्योंकि 2 टाइम्स है, इधर भी अपन रूट लगा देंगे, इधर भी, तो ये आपसे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो आपका r कितना आ गया बेटा, 1/3 आ गया। लेकिन हमको तो क्या निकालना है, d, तो 2 इंटू r, तो r कितना है 1/3, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, अब आ गया सही आंसर। तो यह है आपका आंसर 2/3। तो यहाँ थोड़ी सी देखो कितनी मेरे से एक बारीक मिस्टेक हो गई थी कि आर स्क्वायर को मैंने 2 बार नहीं लिखा था। ठीक है, डोंट माइंड, कोई बात नहीं, कई बार अपन से बनाते बनाते, और हम लोग को अब आप मैं आपको यकीन दिला डेफिनेटली ये क्वेश्चन अगर पेपर में आएगा आप लोग को, तो आप लोग को याद आ जाएगा कि हमसे थोड़ी सी बनाते समय मिस्टेक हो गई। तो मैंने तो मिस्टेक की है, लेकिन मेरे को याद है कि मेरे प्यारे बच्चे इसको कभी भी गलती नहीं करेंगे, और डेफिनेटली यू विल गेट द करेक्ट आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।